Welcome back. You're watching the morning news on CNN News 18. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde will visit Ayodhya today. CM's son Shrikant Shinde welcomed all the Shiv Sainiks who have arrived at Ayodhya by train today. Meanwhile, Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has left for the holy city. Now, this comes after Eknath Shinde, along with other party MPs and MLAs, flew down to Uttar Pradesh's capital Lucknow yesterday. Today, he will visit the ongoing construction site of the Ram Janmabhoomi temple and will also perform the evening aarti on the banks of the Saryu River. However, politics has erupted over CM Shinde's visit to Ayodhya, with NCP leader Ajit Pawar slamming the publicity around the visit. Ajit Pawar said that there are pressing issues related to unemployment, crime and farmers' distress that requires more attention. Hitting back at Ajit Pawar, Shinde said that it's not a political visit. Chalo Ayodhya, the hoardings that have been put up across several locations in Ayodhya to welcome Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and his 40 MLAs and MPs in the city where Shri Ram temple is coming up. Now, right here next to me is one such poster where you can see Anand Dighe, Balasaheb Thackeray, Chhatrapati Shivaji Maharaj. Right on the backdrop of on the background, we can see that there's a huge Ram temple. On one hand, we are also seeing that there are photos of Amit Shah, Narendra Modi, Yogi Adityanath and Nadda. So clearly, this is the kind of optics that Eknath Shinde is trying to project here. What is ironic is that this is the same location where less than a year ago, he was instrumental in holding and bringing together a program for Aditya Thackeray in a similar fashion to seek the blessings of Lord Shri Ram. Now remember, for the Shiv Sena, Ram temple has always been an issue that has been close to its heart. It has played a pivotal role for the gains of the party in terms of politics. पहले तो मैं प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और अयोध्या नगरी जो है, अयोध्या हमारे लिए बहुत ही श्रद्धा का विषय है, भावना का विषय है, भक्ति का विषय है, हमारे लिए अस्मिता का विषय है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार यहाँ आने के बाद काफ़ी बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। ये जो विजिट है आप लोगों की, ये कितनी मायने रखती है, कितनी इम्पोर्टेंट है? नहीं, राम लल्ला का हम दर्शन लेने आए हैं। जैसे साहब पहले 3 बार आ चुके हैं, 4थी बार दर्शन लेने आए हैं और राम लल्ला का आशीर्वाद लेके हम महाराष्ट्र में चले जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, दर्शन करके जाएंगे। उन्होंने आमंत्रण दिया था साहब को, वो हिसाब से आके उन लोग दर्शन करके चले जाएंगे। आप पिछले 2 से 3 दिनों से यहाँ पे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ आप रामलल्ला के दर्शन लेने के लिए आए हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो राजकीय टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपके खिलाफ काफी एलिगेशंस हो रहे हैं। एक्चुअली हम यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं रामलल्ला का, क्योंकि ये हमारे भगवान है। जो एलिगेशन कर रहे हैं उनके रामलल्ला भगवान नहीं है, जो एलिगेशन कर रहे हैं वो हिंदुत्ववादी नहीं है। हम लोग हिंदुत्ववादी है, हमारा भगवान, हमारे जो भगवान है हिंदुत्ववादी की, वो रामलल्ला है। इसलिए हम यहाँ पे दर्शन करने आए। जो हिंदुत्व के बारे में जो बोल नहीं सकते, जो हिंदुत्व निभा नहीं सकते, वो ये बारे में ये गलत बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि रावण राज चल रहा है या क्या चल रहा है, ये सब लोग जानते हैं। यहाँ तो मतलब लोकतंत्र का राज्य चल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का राज चल रहा है। सबको लेकर मतलब ये राज्य चला रहे हैं। बहुत सारे निर्णय एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी ले रहे हैं। तो आदित्य ठाकरे ये बोल रहे हो कि भाई रावण राज है, तो मतलब उनका राज्य कौन सा था, ये भी मतलब सवाल हम आदित्य ठाकरे को पूछते हैं। तो इसी तरह मतलब बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन हम हमारा काम करते रहेंगे। एकनाथ शिंदे जी विकास का काम कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं, और जो आरोप लगाने वो आरोप लगाते रहे। तो प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है
और जो अच्छे लोग हैं उनको धनुष्य बाण मिल गया। जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को छोड़ दिया उनको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने सत्ता के लिए ये सब किया था। भगवान राम जी तो 14 साल वनवास में रहे लेकिन अपने तत्वों को नहीं छोड़ा था। आदित्य जी जिस तरह से बोल रहे हैं ये तो उनको सिखाया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट की है एजेंसी। जो गोबेल्स की नीति थी कि 4 बार झूठ बोलो तो लोगों को सच लगता है, वही दिशा में वो जा रहे हैं। लेकिन सत्य अमर रहता है। हम लोग सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं और हमारी जीत तो हो ही गई है, लेकिन अच्छी सेवा करके राम राज्य लेना, राम राज्य करना यहाँ पे, यही हमारा उद्देश्य है।